হাফেজ ছাত্রদের নিয়ে নতুন একটি ভাবনা শুরু করলো আজ থেকেই, প্রথমবার ওয়েস্ট বেঙ্গলে শুরু হলো, যেটা কর্ণাটকে এতদিন চলছিল। বিদার শহর থেকেই তাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল, যে মাদ্রাসার হাফেজ ছাত্ররা তারা হাফেজ হয়ে তারপরে কোনো হায়ার এডুকেশনে যেতে পারে না, তারা কোনো ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার বা শিক্ষক হতে পারে না। তাদের জন্যই ভাবনা এই শাহিন গ্রুপের, যেটা কর্ণাটকের বিদারে রয়েছে, সেখান থেকেই শুরু। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে কিন্তু তারা বিভিন্ন শাখা খুলেছে সেই প্রতিষ্ঠানের। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের থেকে যে প্রেস রিলিজ করা হলো, কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে যে ঘোষণা দেওয়া হলো যে মাদ্রাসার হাফেজ ছাত্রদের জন্য আলাদাভাবে একটা কোর্স চালু হচ্ছে। এটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে। আজকেও ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আজকের সূচনা হলো কলকাতা প্রেস ক্লাবে। এর মূল বিষয়টা কী রয়েছে যদি একটু বলেন। মূল বিষয়টা হচ্ছে যে কর্ণাটক বিদারের শাইন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস, সেই শাইন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস 50টি মাদ্রাসায় এই প্রজেক্টটা লঞ্চ করছে এবং এর দ্বারা 10,000 শিক্ষার্থীকে যারা হাফেজ হবে, হাফেজ হওয়াতে তারা এই প্রজেক্টে আসবার সুযোগ পাবে। সো যারা ইতিমধ্যে হাফেজ কমপ্লিট করেছে তারা এই কোর্সের আওতায় আসবে। এই কোর্সে তারা পড়াশোনা করতে পারবে, ভর্তি হতে পারবে। পরে তাদেরকে প্রথম যেই প্রজেক্টটা ডিজাইন করা হয়েছে, প্রথমে তারা এখান থেকে মাধ্যমিকটা পাস করবে, 10th পাস করবে, তারপরে তাদের 12 পাস করানো হবে। তারপরে তারা যেই দিকে ইন্টারেস্ট হয়ে যাবে, কেউ ডাক্তার হবে, লয়ার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, বিজনেস পার্সন হবে, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হবে, স্পোর্টস ইভেন্টে যাবে, ইভেন্ট ম্যানেজার হবে, কর্পোরেট সেক্টরে যাবে, যে যেদিকে যাবে। এর চেয়ারপারসন হচ্ছে ডক্টর আব্দুল কাদির সাহেব, ইনি শাইন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের চেয়ারপারসন। তো ওনার চিন্তাভাবনা এটা বলা হচ্ছে যে দেশ এবং জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে সবাইকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সেই জন্য তিনি এই মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে এই এমন একটি কোর্স প্রজেক্ট লঞ্চ করেছে যার দ্বারা দেশ এবং জাতি সমানভাবে এগিয়ে যাবে। আমরা কথা বলবো আজকে কর্ণাটক থেকে যিনি এসেছেন, যে শাহিন গ্রুপের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল কাदिर साहब আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তার সঙ্গে কথা বলবো। कर्नाटक से आया वेस्ट बंगाल में नया एक अपने शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए नया कोशिश जारी कर रहा है। देखिए, एक नया मंसूबा बना है, प्रोजेक्ट बना है मदरसा प्लस के नाम से। इसके अंडर में हम 5,000 हाफिज़ों को जो मदरसे में हिफ्ज़ कर लिए हैं, कुरान याद कर लिए हैं और वो फिर फारिग हो गए हैं, फ्री हैं, उन तक ये बात पहुंचाकर उनका सिलेक्शन करके इंडिया भर के मदरसों में उनको रखेंगे। एक मदरसे में 100 हुफ़ाज़ को हम रखेंगे। मदरसा उनकी मेज़बानी करेगा, उनके रहने का, खाने का, उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी लेगा और हम टीचर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे, टीचर्स की सैलरी देंगे और उनको NIOS के ज़रिए 10th पास कराने के हमारा ये मंसूबा है। इसको मदरसे के लोग, उलमा इकराम और दानिशवरान हज़रात इसको पसंद कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल 50 का टारगेट था, 58 मदरसे सेलेक्ट हुए हैं। वेस्ट बंगाल में 2 मदरसे सेलेक्ट हुए हैं, अल-हुदा स्कूल और हाशमिया इंटरनेशनल स्कूल वहाँ पर है। और ये मेरी बात मुल्क भर के तमाम हुफ़ाज़ तक पहुँचे। मैं नाज़रीन से ख्वाहिश करता हूँ, ख्वाहिशमंद हुफ़ाज़ को हमारी वेबसाइट shahinGroup.org पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और उनको जोड़ें और ये बात हर हाफिज़ तक पहुँचाएँ, ये मेरी ख्वाहिश है। फ्री में जो नीडी हुफ़ाज़ हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, उनको 100% फ्री रहेगा। रहना, खाना, पढ़ना, किताबें, एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह फ्री रहेगा। और जो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं उनके लिए माहाना 3,000 रुपये फ़ीस के साथ उनको एडमिशन दिया जाएगा। लड़कियों के लिए 3 सेंटर क़ायम किए गए हैं, जिसकी डिटेल हमारी वेबसाइट पे हासिल किए जा सकते हैं। और ऐसे हुफ़ाज़ जो 10th पास हैं, उनकी 10th 12th और डिग्री पास हैं, उलमा इकराम और हुफ़ाज़, उनके लिए बीदर में 200 सीट इसके लिए डिसाइड करके रखे हैं। 10th पास हुफ़ाज़ को मेहनत करा के, उनकी बेसिक ठीक करके, बिल्कुल बुनियाद से उनको आगे बढ़ाकर उनको 11th में एडमिशन लेकर पढ़ने के काबिल बनाएंगे। 12th पास हुफ़ाज़ को मेहनत करा के, बेसिक के साथ इम्प्रूव करा के उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन के काबिल बनाएंगे। इसी तरह ग्रेजुएट उलमा और हुफ़ाज़ को उनकी बेसिक ठीक करेंगे 1 साल भर में और उनको B.Ed में, C.Ped में, B.Ped में और दीगर कोर्सेस में एडमिशन के काबिल बनाएंगे। इस तरह से साइंस 12th पास हुफ़ाज़ को 2 साल में नीट के ज़रिए MBBS, डेंटल, फार्मेसी, यूनानी, नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए तैयार किया जाएगा। एकदम मेन ऑफिस कहाँ है भारत में? मेन ऑफिस कर्नाटका बीदर शहर में है, जो हैदराबाद से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर पर है। और सारी डिटेल हमारी वेबसाइट shahinGroup.org पर हासिल किए जा सकता है।
থ্যাংক ইউ। আমরা কথা বললাম কর্ণাটকের বিদার থেকে যিনি এসেছেন, শাহিন গ্রুপের চেয়ারম্যান রয়েছেন ডক্টর আব্দুল কাদির সাহেব। তিনি জানালেন যে মাদ্রাসার হাফেজ ছাত্রদের জন্য এবং যারা মাদ্রাসা থেকে ড্রপ আউট হয়ে রয়েছে তাদের জন্য স্পেশালভাবে কোর্স থাকবে, বিভিন্ন কোর্স থাকবে। সেই কোর্সের মাধ্যমেই কিন্তু হাফেজ ছাত্র এবং যারা ড্রপ আউট তাদের জন্য বিশেষ কোর্স থাকছে। তারা এখানে মাধ্যমিক পাশ করতে পারবে, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে পারবে এবং হায়ার এডুকেশনে পরবর্তীতে কিন্তু তারা এই কোর্সের মাধ্যমে যেতে পারবে। আজকে এই সমস্ত বিষয় নিয়েই কিন্তু কলকাতা প্রেস ক্লাবে তাদের একটি সাংবাদিক বৈঠক হয়। সাংবাদিক বৈঠকে কি তারা জানাচ্ছে বিস্তারিত দেখুন আমাদের SSTV পাবলিকের মাধ্যমে। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर की तरफ से एक बहुत ही खुसूसी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उसके तहत इंडिया भर के 5000 स्टूडेंट्स को, हुफ़ाज़ को NIOS के ज़रिए 18 महीने में 10th पास कराया जाएगा। शाहीन ग्रुप में ये हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के नाम से गुज़िश्ता 12 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई स्टूडेंट्स को हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जोड़ने में कामयाब हुए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेजने में कामयाब हुए, बल्कि यहाँ तक कि एम्स भोपाल में एक ऐसा ही हाफिज़ मेडिकल कोर्स कर रहा है। अब 5000 हुफ़ाज़ को हम इंडिया भर से सेलेक्ट करेंगे और बड़े दीनी मदारिस जहाँ पर गुंजाइश है, जगह है, वहाँ पर 100 हुफ़ाज़ को रखेंगे। मदरसे की ज़िम्मेदारी होगी कि वो स्टूडेंट्स की तरबियत करें, उनको हिफ्ज़ के दौर का इंतज़ाम करें, उनको ज़रूर दीनी तालीम पढ़ाएं और रहने खाने का इंतज़ाम करें। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कुछ NGO की मदद से टीचर्स का वहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे, टीचर्स की सैलरी देंगे, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का इंतज़ाम करेंगे, बुक्स का इंतज़ाम करेंगे और इस तरह से 5000 हुफ़ाज़ को और सिर्फ 18 महीने में 10th पास कराएंगे। इसका हमको तजुर्बा है 12 साल से। ऐसे हुफ़ाज़ जो कभी स्कूल नहीं गए थे, मॉडर्न एजुकेशन से बिल्कुल ही नाबलद है, उनको हम AICU, हमारा एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, शोबा है, जहाँ पर 1:6 के रेशो के हिसाब से एक टीचर के पास 6 स्टूडेंट्स होते हैं और हर एक की बेसिक मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को 2-3 महीने में ठीक करके उनको 10th पढ़ाया जाता है। एक कामयाब तजुर्बा है, इसको हम आम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हमारा टारगेट 50 का था, लेकिन अब 58 ऐसे मदारिस हमारे साथ जुड़े हैं और वहाँ पर ये काम हो रहा है। इसके लिए उलमाए कराम सरपरस्ती कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मारूफ बड़े उलमाए कराम मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब के अलावा तमाम उलमाए कराम इसकी सपोर्ट कर रहे हैं और उनके अपने मदारिस में भी ये सेंटर को मदरसा प्लस के नाम से ये नई तहरीक जो हमारी शुरू हुई है, इसके सेंटर को कायम करने का मंसूबा है। ये वहाँ पर हुफ़ाज़ को हम पहले तरबियत देंगे, उनकी बेसिक मैथमेटिक्स को ठीक करेंगे, लैंग्वेजेस को ठीक करेंगे और उसके बाद वहाँ पर 6 असातिज़ा ये हुफ़ाज़ को 10th के सिलेबस को पढ़ाने के लिए मशगूल रहेंगे। बाकी 4 असातिज़ा उस स्कूल के, उस मदरसे के तलबा को मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाने में मसरूफ़ हो जाएंगे। हम हर मदरसे को 10 टीचर्स दे रहे हैं, ट्रेन टीचर जो बीदर में AIC को पढ़ाने की ट्रेनिंग होगी वो ट्रेंड होंगे। इसका तकर्रुर हो गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की मदद से हम एक बड़ा कैंपेन चलाए हैं और 500 टीचर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें मुस्तहिक़ तलबा को यानी इमदादी तलबा को 100% फ्री रहेगा, हर चीज़ फ्री रहेगी और वो तलबा जो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं उनको माहाना 3000 रुपये फ़ीस ली जाएगी। इसमें लड़कियों के लिए 4 बड़े सेंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पर 100 की गुंजाइश है, जहाँ पर हाफिज़ा और आलिमा को मौका दिया जाएगा। एक सेंटर है रामपुर में जामिअतुस सालिहात, इसी तरह हैदराबाद में एक सेंटर है, किशनगंज में एक सेंटर है और आज़मगढ़ में भी एक सेंटर कायम किया गया है। इसके अलावा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सरपरस्ती में 3 सेंटर ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां पर 13 साल से कम उम्र के हुफ़ाज़ को लिया जाएगा, 50-50 हुफ़ाज़ को लेंगे और वहां पर 5 साल कोर्स होगा
दीनियात के साथ उनको 12th पास कराने की हम कोशिश करेंगे और 12th पास कराएंगे और उनको 5 साल के बाद बड़े दीनी मदारिस में भेजने का हमारा मंसूबा है। बीदर में 10th पास, 12th पास और डिग्री पास उलमा और हुफ़ाज़ के लिए मौका रखा गया है, जिसके लिए 200 नशिस्तें तय किए गए हैं। 10th पास हुफ़ाज़ को उनकी बुनियादें ठीक करके, उनके बेसिक ठीक करके उनको 11th में बैठने के, समझने के काबिल बनाया जाएगा और उनका सिलेबस, उनका तालीमी दौर आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से 12th पास हुफ़ाज़ और उलमा को उनकी बुनियादें ठीक करके बेसिक के साथ उनको पढ़ाकर उनको डिग्री में एडमिशन के काबिल बनाकर डिग्री का कोर्स कराया जाएगा। और इसी तरह जो डिग्री पास हैं उलमा और हुफ़ाज़, उनको उनका बेसिक ठीक करके, उनकी बुनियादें ठीक करके उनको बीएड, सीपीएड, बीपीएड और दीगर कोर्सेस में एडमिशन के काबिल बनाकर, बल्कि उनको टीचर बनाकर फिर से मदरसों में उनका तखर्रुज करेंगे। उनको AICU के मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के टीचर बनाने का ये हमारा मंसूबा है। और ऐसे हुफ़ाज़ जो 12th पास हैं उनको 1 साल का फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, जो इसी साल बीदर में कामयाबी के साथ चल रहा है। प्री नीट के नाम से 1 साल का कोर्स शुरू किए हैं। ऐसे हुफ़ाज़ और उलमा इकराम जो 12th पास हैं साइंस से, उनको प्री नीट का 1 साल का कोर्स कराकर फिर 11th 12th साइंस से कराकर उनको नीट रिपीट कराकर उनको MBBS, DDS, नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह कोर्सेज में एडमिशन के अहल बनाने की हमारी कोशिश है। इसके लिए हमसे अप्रोच कर रहे हैं, कॉलेजेस के ज़िम्मेदार भी अप्रोच कर रहे हैं। गुलबर्गे से एक डेंटल कॉलेज है, अल बदर कॉलेज, जिनके ज़िम्मेदार है और ये प्रोग्राम को पसंद करके ऑफ़र करे हैं कि हम ऐसे हुफ़ाज़ को सालाना 5 सीट फ्री देंगे, रिहाइश के साथ, खाने के साथ फ्री सीट देंगे और उनके पास और भी कोर्सेस हैं वो भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम ऐसे इंस्टीट्यूशन को मदरसा प्लस एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं और मुल्क भर के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो अपना अपना ऑफ़र दें और हुफ़ाज़ को कुछ उनको खुसूसी रियायत के साथ एडमिशन करें। ऐसा हो जाएगा तो यकीनन हुफ़ाज़ के लिए भी सहूलत हो जाएगी और मदरसों में भी, उनके स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में भी बरकत आएगी और एक नया ट्रेंड शामिल हो जाएगा। ये आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत महसूस हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भरपूर ताउन मिल रहा है। मदरसे के अहबाब आगे बढ़कर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। বিষয়টা স্যার যেভাবে বলছিল ঠিক এরকম কি একটি নদীতে একটি জেলে মাছ ধরছে এবং সে মাছ ধরে আর বড় মাছগুলো ছেড়ে দেয়, ছোট মাছগুলো রেখে দেয়। একজন দেখছিল, জিজ্ঞেস করছে স্যার কী ব্যাপার, বড় মাছগুলো ছেড়ে দিচ্ছেন, ছোট মাছগুলো রেখে দিচ্ছেন? তো বলছে আমি যে কড়াইটাতে মাছটা ভাজি ওই কড়াইটা ছোট, তাই মাছটা বড় মাছগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। তো আমাদের চিন্তার যে সীমাবদ্ধতা, ওই সীমাবদ্ধতাটাকে ভাঙতে হবে সবার আগে। মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি একটা কথা বলেছিলেন কি, ভালোবাসা খুঁজতে যাচ্ছ যেও না, যে দেয়ালটা তৈরি হয়েছে দেয়ালটা ভেঙে দাও নিচের মধ্যে, তাহলেই ভালোবাসা পাবে। ঠিক এই সোচ থেকে, এই চিন্তা থেকে শাইন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস কর্ণাটক বিদার থেকে একটি প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে 10,000 স্টুডেন্টসকে, তাদেরকে হাফেজ যারা পাশ করে এসছে তাদেরকে মেইন স্ট্রিম এডুকেশনের মধ্যে আনা। এই মেইন স্ট্রিম এডুকেশনে যারা মূলধারা শিক্ষার সাথে যুক্ত ছিল না, সেই হাফেজগুলোকে মূলধারা শিক্ষার সাথে এনে NIOS এর মাধ্যমে তাদেরকে ব্রিজ কোর্স, 18 মাসের কোর্সের মাধ্যমে 10th পাস করা, অর্থাৎ মাধ্যমিক পাস করানো হবে। তারপরে তাদের হায়ার এডুকেশনের দিকে যাওয়া হবে এবং তারা এই হাফেজের সাথে সাথে, এই ডিগ্রিটার সাথে সাথে তারা বিভিন্ন যেই পেশা রয়েছে, আইনজীবী, যদি কেউ লয়ার হতে চায় সেদিকে যেতে পারবে, সে যদি নিট দিয়ে ডক্টর হতে চায় সেদিকে যেতে পারবে, বিজনেসম্যান হতে পারবে, কর্পোরেট সেক্টরে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারবে এবং দেশ এবং দশের সেবায় তারা আরও ভালোভাবে কাজ করবে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে একটা ট্রেন্ড চলছে, যে ট্রেন্ডটা হচ্ছে যারা হাফেজ হচ্ছে তারা মূলত মাদ্রাসা মক্তবগুলোতেই রয়েছে এবং তাদের ওইটুক নিয়েই তারা তাদের জীবনযাপনকে সঙ্গী করে একটা জীবন পার করে এই পৃথিবী থেকে আমরা বিদায় নিচ্ছি। ঠিক এরকম একটা জায়গা থেকে যখন হাফেজরা একটি কোরআনকে এই বুকের মধ্যে ধারণ করা,
তারপরে যেই মেধা তাদের রয়েছে, নইলে কেন ধারণ করতে পারবে, সেই মেধাটার উপযুক্ত ব্যবহার করে দেশ এবং জাতির উন্নতির জন্য এই প্রজেক্টটা নেওয়া হয়েছে। এই প্রজেক্টটা AICEI's একাডেমিক ইনসেন্টিভ কেয়ার ইউনিট, আই হোপ সো স্যার, রাইট, এখান থেকে টিচারদেরকে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটা মাদ্রাসা 10 জন করে টিচার পাবে এবং এই টিচারের যে ইন্তজাম ব্যবস্থাপনা এটা শাইন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস থেকে করানো হবে, সেখান থেকেই তাদের বেতন দেওয়া হবে। এর পুরো বিষয়টা আমাদের যেই প্রেস রিলিজ রয়েছে, যেটার কি বলে ওইটাকে, আমাদের যেই সফট কর্নারগুলো রয়েছে, যেটার নিউজ প্রিন্ট মিডিয়াতে আমাদের বেরোবে, সেটাতে সবাই আপনারা আরও বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন। মূলত বিষয়টা হচ্ছে এই যে হাফেজদেরকে মেন স্ট্রিম এডুকেশনে এনে দেশ এবং জাতির উদ্দেশ্যে তাদেরকে ব্যবহার করা। এই পর্যায়ে বা এই সেগমেন্টে আপনাদের যা প্রশ্ন রয়েছে সেই প্রশ্ন করার জন্য এবার আহ্বান করছি। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো ডক্টর আব্দুল কাদির সাহেবকে আমি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আই উড লাইক টু কল অন দ্য মাইক্রোফোন ডক্টর আব্দুল কাদির সাহেব টু গিভিং আনসার অফ দোজ কোয়েশ্চেন্স coming from the journalist. So please. हुफ़ाज़ के लिए मौका रहेगा। वेस्ट बंगाल में इसके 2 सेंटर कायम हो रहे हैं हाफिज़ों के लिए। ऐसे हाफिज़ जो कभी स्कूल नहीं गए थे वेस्ट बंगाल में, खुदा स्कूल में स्टूडेंट रहेंगे और हाशमिया एकेडमी में 100 हुफ़ाज़ के लिए मौका रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को, हुफ़ाज़ को हम कर्नाटका, महाराष्ट्र के सेंटर्स में शिफ्ट करके वहाँ पर मौका हम देंगे। हम वेस्ट बंगाल के सारे ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करते हैं कि ऐसे हुफ़ाज़ को आइडेंटिफाई करने में हमारा ताउन करें और ये रजिस्ट्रेशन हमारा करा सकते हैं shaheengroup.org पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो हम गुफ्तगू करेंगे। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चला है, इसके लिए हम चाहेंगे कि मौलाना तालिब रहमानी साहब अपने तासुरात को पेश करें, चूँकि ये बहुत ही अहम और वक्त की अहम ज़रूरत है। ये लॉकडाउन में हमारे बच्चों को कोई 10 पारे पढ़ करके आज राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई 15 पारा हिफ्ज़ करके टेलर का काम कर रहा है, कोई 25 पारा कुरान हिफ्ज़ करके जो है सो अलग अलग कामों में चला गया, टाइल्स का काम कर रहा है। कुछ हुफ़ाज़ बनने के बावजूद भी वो परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को महसूस करके जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने ये जो उनके साथ और भी इश्तराक है, ये जो काम कदम को आगे बढ़ाए हैं, इसके ऊपर हज़रत मौलाना तालिब रहमानी साहब से मैं चाहूँगा कि वो अपने तासुरात को पेश करें। बहुत पुराना है और मैं यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के मेज़बानों में पीछे खड़ा होकर शर्फ हासिल कर रहा हूँ। सादत है मेरे लिए, लेकिन जब मैं बीदर जाता हूँ तो मैं वहाँ का लोकल हो जाता हूँ। शाहीन एकेडमी एक उम्मीद का नाम है, एक आशा है, एक होप है। मदरसों के बारे में एक आम बात जो बरसहा बरस से चली आ रही थी कि मदरसे में फ़ारिग होकर उलमा क्या करेंगे, उनका फ्यूचर क्या है, उनका मुस्तकबिल क्या है। तो ऐसा नहीं है कि मदरसे पहले मेन स्ट्रीम में नहीं थे, मदरसे शुरू से मेन स्ट्रीम में हैं। वक्त के मुताबिक चैलेंजेस अलग अलग होते चले गए। जब एक वक्त था अंग्रेज़ों को भगाना, तो मदरसों ने उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया था और आप जानते हैं कि उनका इतिहास और उनकी तारीख़ क्या है। तो मदरसे फर्स्ट डे से मेन स्ट्रीम में हैं। इस वक्त की ज़रूरत है कि हमारे देश में ईमानदार, ज़हीन, टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है जो भारत को विश्व गुरु बनाने में और इंटरनेशनल लेवल में साइंस, तरक्की, इकोनॉमी के दुनिया में एक बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचा सके। तो ऊंचे मकाम पे भारत को पहुंचाने का जो टारगेट और लक्ष्य लिया गया था APJ अब्दुल कलाम साहब की तरफ से, उस लक्ष्य को लेकर भारत को उस मकाम पर पहुंचाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जैसे जियाले और इस कौम के सरबराह और फ़ख्र मिल्लत खड़े हो गए कि इस मामले में अगर कल अंग्रेज़ों से लड़ने में मदरसे आगे आगे थे
तो आज भारत को भी भारत दुनिया के ऊंचे मकाम पर पहुंचाने के लिए भारत के करोड़ों हिंदू भाइयों के साथ मुसलमानों के बच्चे और मदरसों के बच्चे भी भारतीय बनकर आगे रहेंगे। ये एक्चुअली टारगेट है, भारतीय बनकर भारत को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जहां पर देश के हमारे करोड़ों हिंदू भाई भारत के लिए चाह रहे हैं कि इसका सर ऊंचा रहे, इसकी इज्जत बनी रहे, तो ये भारतीय मुसलमानों के बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं ये भी चाहते हैं कि डोकलाम से लेकर पूंछ तक भारत की सुरक्षा में, हिफाजत में, ऑपरेशन थिएटर में, आईटी सेक्टर में और इनकलाबी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में और दुनिया के हर तरक्की में मुसलमानों के बच्चे, मदरसों के बच्चे भारत के साथ साथ रहे। जिस तरह कभी हमारी बेटी फाइटिंग में जाकर आगे बढ़ती है तो हमारे उलमा भी इसी तरह आगे बढ़ रहे, और मदरसों का एक बड़ा रोल रहा है भारत की आज़ादी में, भारत की तरक्की में। आपको मालूम हो कि इस भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये मदरसे के स्टूडेंट थे, बिहार के छपरा में मदरसे में पढ़े थे और उर्दू में सिग्नेचर किया करते थे। लेकिन बीच में ऐसे हालात आ गए कि फिर वो ऑप्शन नहीं मिला, वो चांस नहीं मिला। मैं सलाम करता हूं और आप सब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का, और बंगाल में हमारे मौलाना रोशन ज़मीर साहब जिनके नाम में रोशन भी है और ज़मीर भी है माशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी कौम के दरमियान जहाँ ऐसे टैलेंटेड लोग होंगे जिनकी विजन बड़ी क्लियर होगी, जिनके प्लानिंग बड़े अच्छे होंगे, और हकीकत में मदरसा देशभक्त तय करता है, और उन देशभक्तियों को लाकर देश के उजालों में लाने का काम हजरत मौलाना रोशन ज़मीर साहब जैसे उलमा, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जैसे महान बुद्धिजीवी, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल की क़यादत में और बड़े बड़े उलमा और अकाबरीन हमारे साथ हैं। ज़ाहिर उलमा और अकाबरीन की सरपरस्ती के बगैर ना हम दीन का कुछ काम कर सकते हैं, ना दुनिया का कुछ काम कर सकते हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए इस वक्त भारत में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने एक तहरीक चलाई है, चिरागों से चिराग जलते हैं। बंगाल भी पीछे ना रहे, आसाम भी पीछे ना रहे, बिहार भी पीछे ना रहे। टारगेट ये है कि अब हमारे मदरसों में इंशाअल्लाह मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान होंगे, और हिफ्ज करते करते ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब और हमारे अकाबिर उलमा और हमारे मौजूदा उलमा कि हम अपने बच्चों को जब हाफिज की डिग्री दें तो उसी वक्त 10th पास की भी डिग्री दें इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को जब आलिमियत की डिग्री दें तो उसी वक्त हम उनको 12th पास की भी डिग्री दें या उससे बेटर डिग्री दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी तरह हम अपनी बेटियों के बारे में सोचें कि बच्चियों के बारे में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने फरमाया कि 2 सेंटर हिंदुस्तान में हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं तो 10 करोड़ मर्द हैं तो 10 करोड़ औरतें हैं, तो 2 सेंटर में क्या होने वाला है। लेकिन आप सबों के जरिए बात पहुंचे गैरतमंद लोगों की तक कि वो अपने मकानात को, अपने बिल्डिंग को, अपनी ज़मीन को डोनेट करें कि बच्चियों को, बेटियों को आगे बढ़ाने में और उनकी दीनी तरबियत के साथ साथ भारत को बनाने में, भारत की तामीर करने में, देश को विकास और उज्जवल बनाने में। जहां हमारे करोड़ों हिंदू भाई आगे बढ़ रहे हैं वहां मुसलमान भी उनके कांधे से कांधा मिलाकर ये कहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। से क्लासेस शुरू हो रहे हैं, इनरोलमेंट का काम अभी स्टार्ट हो गया है। shaheengroup.org हमारी वेबसाइट पे हुफाज इनरोलमेंट कर सकते हैं और सारी डिटेल वहीं उसी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। कितना मदरसा में शुरू करेंगे? ये 58 मदरसे अभी हम इनरोल किए हैं, 50 का टारगेट था, लेकिन ख्वाहिशमंद ज़्यादा होने की वजह से 58 मदरसों में ये काम शुरू हो रहा है और हर मदरसे में 100 हाफिज़ों को रखेंगे। ये कौन कौन से मदरसे हैं? ये लिस्ट अभी हम देंगे आपको। मौलाना अरशद मदनी साहब के 2 मदरसे हैं, बेंगलोर में मौलाना मकसूद इमरान साहब के मदरसे हैं। बड़े मदरसे हैं जहाँ पर जगह ज़्यादा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए गुंजाइश है, रहने के लिए अच्छी सहूलतें हैं। वैसे ही मदरसों को हम इन दी बिगनिंग सेलेक्ट करें। मगरबी बंगाल में हुदा स्कूल एक है, मौलाना रोशन ज़मीर साहब का मदरसा हाशमिया में 100 हुफ़ाज़ को रखने का मंसूबा है। मदरसे अशरफुल उलूम में 100 हुफ़ाज़ को रखेंगे। आप लोग एक हाफिज तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाइए। मेरा प्रश्न है, मदरसा में 4% पढ़ता है, मुसलमान जो कम्युनिटी है 4% पढ़ता है, लेकिन मदरसा के बाद भी जो 96%
जो पीपल है उसका भी तो बच्चा होता है, उसका मैरिड होता है, आप क्यों उसको नहीं उसका साथ कनेक्ट करते हैं? उसको भी कनेक्ट करना जरूरी होता है क्या? 96% मदरसा से दूसरे जगह में पढ़ते हैं, वो भी एजुकेशन चाहता है लेकिन उसका उतना पैसा नहीं होता है, उसका मेरिट होता है, उसको कैसे आप डेवलपमेंट करें? उनके लिए कोशिशें हो रही हैं, कई एनजीओज काम कर रहे हैं यहाँ पे, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में अलमीन मिशन काम कर रहा है और भी एनजीओज काम कर रहे हैं। हम लॉकडाउन के बाद एक स्कीम इंट्रोड्यूस किए थे केयर्स के नाम से, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। कम्युनिटी का सपोर्ट अगर हो जाए तो ये ड्रॉप आउट के लिए और 96% के लिए बल्कि 100% के लिए रास्ते निकल रहे हैं। और अब हम एजुकेशन पे फोकस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समाज को, माशरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैरिजेस में खर्चा ख़त्म करो, दूसरे खर्चे ख़त्म करो, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो। और हम ये अक्सर बोलते हैं कि वो समाज तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च कर देता। फजूल खर्ची ख़त्म करो और तालीम पे खर्च करो और मेहनत बढ़ा दो। आज कर्नाटका में माइनॉरिटीज़ के लिए जो रिजर्वेशन था 4%, वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, वो जो भी लोग उसको फॉलोअप करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमको मेहनतें बढ़ा देना है। हमारी तरजीहात प्रेफरेंसेस में एजुकेशन को देना है, अपने बेटे के साथ पड़ोस के बेटे को देना है, रिश्तेदार के बच्चे को देना है, गरीब बच्चे को सपोर्ट करना है और एजुकेशन को प्रमोट करते हुए ही हम समाज में एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। मैं संतोष तिवारी राष्ट्रीय न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ। पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे टेक्निकल एजुकेशन में मुस्लिम भाई बहुरियत उनके लिए कोई का आरक्षण या कोई चीज़ नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों तालीम में क्यों पीछे रह गए, इसका क्या कारण? ये गफलत भी है। अब समाज जो है बेदार हो रहा है और ये जो मदरसा प्लस का जो मूवमेंट है, इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक सोच बदलेगी, एक हालात बदलेंगे और एक तालीमी इनकलाब आएगा। और ये हमारे नौजवान देश की तरक्की में, जैसा कि मौलाना ने अभी बताया कि हिंदुस्तान को, हमारे प्यारे महान देश हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में, फिर से सोने की चिड़िया बनाने में, फिर से दुनिया का सुपर पावर बनाने में अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, हमारा सीधा सवाल ये था, जैसे आप लोग टेक्निकल उसके समय कोई इंजीनियरिंग हुआ, कोई फ्रिज बनाना हुआ, टीवी बनाना हुआ, बाइक बनाना हुआ, ये सब टेक्निकल में बहुत अपडेट है, बहुत आगे हैं, उसका कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिले या ना मिले, तो क्यों शिक्षा में ही रह गए कुछ? या असल में तिवारी साहब उसकी वजह आप हैं, आपने ध्यान नहीं दिया था हमारे ऊपर। अच्छा, आपने पहले ध्यान नहीं दिया। बाइक आपके पास आ गई तो आपको मैकेनिक की ज़रूरत थी, तो हम मैकेनिक बन गए। थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि हम और आगे बढ़ें। इसके लिए मीडिया जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार। अच्छा, आप पर्सनली जिम्मेदार। चलिए ठीक है। ये आपने कोर्स जो चालू किया, ये सिर्फ उपवास लोगों के लिए? अभी तो हम सिर्फ उपवास को और उलमा को ले रहे हैं, फ्यूचर में ड्रॉप आउट को भी लेंगे, और लॉकडाउन में जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं उनको भी ये मौका मिलेगा। तो हाफिज पढ़ने के साथ साथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन पढ़ेगा ना, लेकिन हाफिज होने का बाद ये 5000 हुफ़ाज़, 5000, 6000 हुफ़ाज़ हिफ्ज़ होने के बाद वाले रहेंगे और उस मदरसे में ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनको भी हम मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ेंगे, उनको मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस साथ ही साथ पढ़ाएंगे और उनको भी 10th पास कराएंगे। इस तरह से मदरसा प्लस प्रोग्राम में 10,000 स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। NIUS से 10th पास कराएंगे हम पहले फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद में फिर उनको 11th, 12th, ITI, डिप्लोमा ऐसे कोर्सेज में एडमिशन कराएंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप जो यूनिवर्सिटी बीदर में नहीं होगा, ये इंडिया भर में 58 सेंटर यूपी में ज़्यादा हैं, वेस्ट बंगाल में 2 हैं, बिहार में कुछ 5-6 हैं, तेलंगाना में हैं, कर्नाटका में हैं, महाराष्ट्र में और राजस्थान में हैं, गुजरात में भी इसके सेंटर कायम किए गए हैं, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी हैं। तो मुल्क भर में जहाँ जहाँ बड़े सेंटर्स हैं और जगह खाली है और वो होस्ट की हैसियत से ये हुफ़ाज़ की खिदमत करने के लिए तैयार हैं, मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं, उनके रहने खाने का इंतज़ाम और उनकी तरबियत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे सेंटर हम सेलेक्ट करके वहाँ पे 100 हुफ़ाज़ अलग अलग मुकामात के वहाँ पर पहुँचाएँगे और उनको 10th पास कराएँगे। बंगाल में शुरू होने जा रहा है? बंगाल में 2 सेंटर हैं। हाँ, 2 सेंटर डिसाइडेड हैं, जो 20 मई से वहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट हमारी वेबसाइट है shaheengroup.org पर जाकर हुफ़ाज़ का रजिस्ट्रेशन कराएं, वहाँ से उनको फिर गाइड किया जाएगा
कि उनका इंटरव्यू कौन से सेंटर पे होगा, फिर बाद में एडमिशन कौन से सेंटर पे होगा। जाहिर है जैसा कि मैं बताया, ये जो नीडी बच्चे हैं जो खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए 100% रहना खाना पढ़ना सब फ्री रहेगा, और जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं उनको माहाना 3,000 रुपये फ़ीस देना है। वो जो सेंटर है उसका नाम बता दें। खुदा स्कूल एक सेंटर है, और उसके अलावा हाशमिया मदरसा हाशमिया फुल एड्रेस बता हड़वा। अभी बोले प्रोफेसर साहब बोले मदरसा हाशमिया इंटरनेशनल स्कूल जो कि प्यारा हड़वा में है, वेस्ट बंगाल, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे हमारा जो शाहीन का वेबसाइट है उसके अंदर जाके आप सर्फ कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऑफिस नहीं है, लेकिन यही सेंटर्स पे जाकर मालूमात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ जिम्मेदारों से बात करके यहाँ पे एक सिस्टम बनाना चाहूँगा जिसके ज़रिए हुफ़ाज़ को सेलेक्ट करके इंडिया भर के सेंटर में भेजें। वो बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा, और हमारी वेबसाइट पर हम अपडेटेड रहेंगे, नए नए सारे इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट shahingroup.org पर देते रहेंगे। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল এসএস টিভি পাবলিক, সত্যের সাথে ন্যায়ের পথে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হন আমাদের পরিবারে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন।